participants cannot join unless someone leaves. So I guess we can start. Okay, let's go. Yes, Yusma. Yes, Yusma. Okay. Assalamualaikum and a very good evening, everyone. Before I formally begin, I would like to request all the participants to keep their mics muted and cameras off. In case of any disturbance from the participants' side, they will be removed from the webinar immediately. So let's get started with the webinar. Welcome to the first. Yusma, sorry to disturb you. The voice is not clear. Can you move your camera a little forward? Is it okay now, ma'am? Yes, it's okay. Okay. So should I start from the beginning, or is it okay if I keep it going? Yes, you can just start from the point you left. Okay. So welcome to the first ever webinar of English Alumni Society entitled One Day Virtual Workshop on Content Writing. This event is the second in a series exploring diverse career paths for English graduates beyond teaching and is made possible by the dedication of our focal person, Ma'am Iram Shehzadi, and the alumni team. Our first seminar, which focused on career choices for English graduates, took place at the university campus in May. On behalf of the English Department's alumni, I, Yusma Nizam, a proud graduate of the Department of English, extend our heartfelt gratitude to Professor Dr. Muhammad Safir Rawan, the Dean of the Faculty of Arts and Humanities, for his continuous support to both students and alumni. His unwavering support is greatly appreciated. This webinar offers participants the opportunity to engage with our presenter, ask questions, and interact with her. Today's session aims to guide you in making well informed career decisions and shaping your professional path. Now, I would like to request Muhammad Sibkatullah for the recitation of Holy Quran to start with the webinar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم Jazakallah. Jazakallah. Before we begin, I'd like to go over a few important instructions. Our esteemed speaker's presentation will span approximately 50 minutes. If you have any questions during the webinar, please type them into the chat box. Alternatively, you can hold your questions until the end when we'll have a dedicated questions and answers session. Additionally, we will share a Google form at the conclusion of the webinar. Those who complete it will qualify to receive certificates.
Therefore, ensure that you attend the entire webinar and listen attentively to the presentation. Lastly, please keep your mic and camera switched off to avoid any disturbance. Without further ado, it is my honor to introduce our esteemed guest, Dr. Fiza Khan Durrani, an accomplished freelancer and proficient content writer. Dr. Durrani, a doctor of physical therapy, commenced her freelancing career in 2017. Initially specializing in content writing, she subsequently diversified into content creation and social media management. In 2021, she established FPF as a dedicated platform to empower the youth in freelancing and financial independence. Presently, her organization offers comprehensive training programs for aspiring content writers and is actively developing courses in graphic design, content creation, social media management, and more. Over to you, Dr. Fiza. Assalamu alaikum everybody. सबको मेरी आवाज Let's check that first. That's the most important part. सबको आवाज ठीक से आ रही है? Yes, ma'am. जी सही है. Okay, great. Okay, let me share the screen with you guys first. Thank you so much for the elaborate introduction. I think you introduced me better than I would have introduced myself, but I'm going to try. Let's start the presentation now first, and then we will move on from there. Okay, let's start. Bismillah. Freelance content writing. Basically, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसका नाम already सुना हुआ होगा कि freelancing आजकल in the last जब से COVID आया है, it's been a very well-known terminology. Freelancing, हर कोई freelancing करना चाह रहा है, especially because online work from home का जब से रिवाज आया है पिछले 1-2 सालों में, तो freelancing का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया in the last 2 years or so. अब इसमें बहुत लोग पूछते हैं कि फ्रीलांसिंग ही करनी है तो उसमें फिर हम कौन सी स्किल करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ट्रेंड पे चल रही है दैट्स फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग. उसकी वजह ये होती है कि whether you are a freelance social media manager, whether you are a freelance graphic designer या आप अपना ब्रांड खोलना चाह रहे हैं, कुछ भी है, हर चीज़ के अंदर राइटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. बेशक आपने ब्लॉग्स लिखने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं, सोशल मीडिया कैप्शंस लिखने हैं, ईमेल्स लिखनी है, हेडलाइंस लिखनी है, एवरीवेयर राइटिंग इज इन्वॉल्व. ठीक है, तो उसकी वजह से फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर कंटेंट राइटिंग का जो एक पॉपुलैरिटी है वो इन द लास्ट फ्यू इयर्स काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज पीपल हैव रियलाइज्ड इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग टू नो. जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग को आगे नहीं भी परस्यू करना होता, वो भी कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज इट्स अ स्किल दैट्स वेरी इन डिमांड. इट प्लेज अ रोल इन एवरी सिंगल प्रोफेशन आउट देयर एंड दैट्स व्हाई इसको बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलैरिटी मिल रही है. तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसको इस नज़रिए से देखें कि आपने अगर फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग ही करनी है तो उसको एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट इट. व्हाट शुड यू नो, होती क्या है, कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, एंड फिर उससे आगे से आगे. बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, I would quickly like to introduce myself and my company, which is Freelancing by Faye. जैसे भी आपको introduction करवाया है, I have been freelancing since 2017. I'm basically a doctor of physical therapy and मैंने freelancing शुरू की थी जब मैं 3rd year में थी. And मेरा वही मकसद था जो इस उम्र में लोगों का होता है. Just wanted to earn a few bucks for myself. कैंटीन के पैसे, रिक्शे के पैसे, छोटी मोटी चीज़ों के पैसे जो अब लगता था कि अपने पास होने चाहिए. सो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी के लिए उस टाइप की चीज़ के लिए फ्रीलांसिंग शुरू की थी. लेकिन बैक देन ये 2017 के बाद, so this is around 6-7 years ago, there was not a lot of people guiding exactly what you have to do if you want to be a freelancer.
अपवर्क के हवाले से, अपवर्क के भी अपने रूल्स काफ़ी सख्त थे उस वक्त। जो प्रोफाइल्स होती थी वो बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं होती थी, एक एज लिमिट भी होती थी एंड बहुत सारी चीज़ें उस वक्त होती थी। सो आई स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम सर्चिंग के फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। फिर फ्रीलांसिंग के अंदर भी कंटेंट राइटिंग मैंने खुद, आई वाज सेल्फ टॉट, आई डिड यूट्यूब रिसर्च, ये वो इधर उधर से सर्च कर करके आई मेड अ करियर आउट ऑफ इट। एंड जब मुझे लगा कि आई हैव रीच दैट लेवल, आई सॉ द पीपल हम भी करना चाहते हैं, सो देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग बाय पे। उसके ऊपर मेरा बेसिक मकसद ये था कि द थिंग्स दैट आई स्ट्रगल विद, other people are also struggling with that, so I will help them start their path onto freelancing by giving them one-on-one guidance कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस चीज़ में, जिस चीज़ में उनको confusion है उसको tackle करना। And that was the main purpose of freelancing by Faye. I made it in 2021 and mashallah से 2 साल में we have grown quite a bit। and हमने content writing से शुरू किया था, then we launched graphic designing, Instagram courses। अभी इस वक्त we are relaunching the brand, meaning कि हम काफ़ी सारे courses पे काम कर रहे हैं, so it's in the process। So inshallah after this webinar, if you would like any specific guidance on anything of the sort, you can always come on here। We are available on Instagram, LinkedIn if you want any further guidance। तो आज के webinar के अंदर basically जो मकसद है वो है एक overview लेना for basic content writing होती क्या है, freelance content writing कैसे करते हैं, for those who have absolutely no idea कि ये क्या होती है and how to make a career out of it and whether there's even scope to make a career out of it। So let's start with that। In the next 40 to 50 minutes, we're going to be talking about what content writing is, how much you can earn from it, why it's important, इसके पैसे मिलते क्यों हैं, how to make a proper career out of it। If you want to leave your 9 to 5 job, तो आपने इसका proper career बनाना है, तो वो कैसे बनाना है, how to become a content writer, उसका road map देखेंगे, and इस presentation के बाद आपने क्या करना है, we will discuss that। ठीक है, okay। So basics से start करते हैं, what is content writing? Content writing की definition यहाँ पर किस किस को आती है? अपने mics open करके जरा एक दफा मुझे बताएं। किसी को कंटेंट राइटिंग ओके एंड जिसको नहीं आती, अगर मैं उसे कहूँ मुझे कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन बताएं, तो वो क्या करेंगे? इमीडिएटली गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे व्हाट इज कंटेंट। ऐसी है, जो आप गूगल पर जाकर लिखेंगे कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग और सामने जवाब भी आ जाएंगे, सामने ब्लॉग्स आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होती है कंटेंट राइटिंग। वो सारे आर्टिकल्स एक कंटेंट राइटर ने लिखे, ठीक है। सो दिस इन अ नटशेल शुड एक्सप्लेन टू यू कि कंटेंट राइटर का काम क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है। वही ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स जो आप गूगल में जाके पढ़ते हैं, हाउ टू मेक चिकन पार्मेजान, हाउ टू फिक्स माई इंटरनेट, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, जितने भी गूगल सर्चेस आप करते हो और सामने जो ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स आते हैं वो बेसिकली कंटेंट राइटर्स ने ही लिखे हैं। अगर इसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन में जाएं तो कंटेंट राइटिंग इज, जैसे नेम में है, राइटिंग कंटेंट फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म गूगल भी हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म कोई न्यूज़पेपर भी हो सकता है। when you are writing content for any platform, that is content writing, ठीक है। अब ये important क्यों है, आपको क्यों हायर किया जाएगा, आपकी ज़रूरत क्या है लोगों को कंटेंट लिखने की? बेसिकली जब आप लिखते हैं जी व्हाट इज कंटेंट राइटिंग और आपने वो आर्टिकल खोला होगा जो ऊपर ऊपर आया होगा, तो वो जिसकी वेबसाइट है वो उससे मनी जनरेट करता है, ठीक है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो कैसे मनी जनरेट करता है, बट बेसिकली जब उसकी वेबसाइट पे लोग आते हैं आर्टिकल पे क्लिक करके उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब वो आर्टिकल जिसने लिखा है उसकी वजह से उसके क्लाइंट को पैसे मिल रहे हैं, बात समझ आ रही है? सो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो कंटेंट आप एज अ राइटर लिखोगे वही वेबसाइट पर जाएगा, वही ट्रैफिक लाएगा, उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी तो मनी जनरेट। दैट इज व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि उनको कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं फॉर देयर वेबसाइट्स। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है इंस्टाग्राम पे फैशन का, मेरा लेट्स से हिजाब्स का बिजनेस, ठीक है। अब हिजाब्स का बिजनेस है तो मुझे अपने सोशल मीडिया के लिए एक बेहतरीन किस्म की राइटर चाहिए जो कैप्शंस बहुत अच्छे अच्छे लिखे, जो स्टोरीज में बहुत अच्छा अच्छा सामान लिख के दे मुझे, वेबसाइट के लिए सामान, क्योंकि इससे सेल्स जनरेशन में उनका काम होता है। तो वहां पर भी कंटेंट राइटर की यही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है।
तो दिस इज बेसिकली व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट एज अ कंटेंट राइटर. आपको किस चीज के पैसे मिलते हैं? टू राइट दैट कंटेंट, टू जनरेट अ स्पेसिफिक गोल, टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल. अब वो गोल आपकी ऑडियंस लाना, मतलब कि ट्रैफिक लाना भी हो सकती है वेबसाइट पे, सेल कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं, क्लाइंट कन्वर्जन्स, ठीक है, और सेल्स करना एंड स्टफ लाइक दैट. तो बहुत सारे डिफरेंट, ओके. तो उस गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए जो हम कंटेंट हम उनके लिए कंटेंट लिखते हैं, तो उस वजह से दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग भी होता है, ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग्स आ जाते हैं. ये मेन मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है. ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया एंड कॉपी राइटिंग. इनको थोड़ा सा डिटेल में अगर जाए तो ब्लॉग्स आर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म राइटअप्स जो कि लोग अपनी वेबसाइट्स पर लिखते हैं, पर्सनल वेबसाइट पे. फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक वेबसाइट है जो कि है which I will tell you guys about later, उसके ऊपर अगर मैं लिखती हूँ हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, आई एम राइटिंग अ शॉर्ट 500 वर्ड का ब्लॉग. उसमें मेरा ओपिनियन है, मैं अपने उससे लिख रही हूँ. तो मैं अपने उससे लिख रही हूँ, ओपिनियन से, अपने एक्सपीरियंस से. तो वो मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है. आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज बिट ऑन द प्रोफेशनल साइड, ठीक है. यस, यू आर सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एट द एंड. अच्छा, आर्टिकल्स जो होते हैं वो अ लिटिल बिट प्रोफेशनल साइड के होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं. बस ये एक थोड़ा सा, देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन दीज टू. फिर सोशल मीडिया कंटेंट, जैसे मैंने अभी बताया था कि कैप्शंस होते हैं सोशल मीडिया के, स्टोरी कंटेंट हो गया एंड स्टफ लाइक दैट. एंड कॉपीराइटिंग जो है इज अ बिट ऑन द मार्केटिंग साइड, बट इट्स स्टिल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कंटेंट राइटिंग. कॉपीराइटिंग से मुराद ये है कि व्हेन यू राइट हेडलाइंस एंड टैगलाइंस फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, जैसे एड्स की आप हेडलाइंस देख रहे होते हो, एंड यू नो मैकडॉनल्ड्स, KFC के जो हेडलाइंस आ रहे होते हैं, टैगलाइंस आ रहे होते हैं विद देयर एड्स एंड देयर कैंपेन्स, उस टाइप की चीजें जो है वो कॉपीराइटिंग होती है. इट्स मोर ऑन द मार्केटिंग साइड, बट इट्स स्टिल ऑन द राइटिंग. अब इन चारों में से जो भी काम आप कर रहे हो, you have to keep 3 aspects in mind if you are a content writer, ठीक है. Your content needs to be clear, your content needs to be relevant to the topic and to the target audience जिसके लिए आप लिख रहे हैं, and it should be engaging. क्योंकि let's face it, 2023 आ गया, अब boring content किसी को भी नहीं. वो जमाने गए जब नेट पे मतलब यू नो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी, जो आर्टिकल था उसी से गुजारा करना था. नहीं, अब हर टॉपिक पे मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स हैं. सो यू हैव टू थिंक कि ये रीडर जो है वो मेरा आर्टिकल या मेरा ब्लॉग क्यों पढ़ेगा. इसलिए पढ़ेगा बिकॉज इट्स एंगेजिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स फन, देयर इज सम काइंड ऑफ एंगेजिंग एंड रेलेवेंट एलिमेंट टू इट, तो वो आपका आर्टिकल पढ़ेगा. सो इट नीड्स टू बी एंगेजिंग. अब आप ये ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, सोशल मीडिया कैप्शन लिख रहे हैं, यू नीड टू कीप दीज 3 थिंग्स इन माइंड. योर कंटेंट नीड्स टू बी क्लियर, it needs to be relevant, and it needs to be engaging, which means like you need to talk to the reader, you need to engage with them, have fun. Whatever you're writing should be fun and should be interesting. अच्छा, अब आप एज अ कंटेंट राइटर whenever you're writing something, अब आप ब्लॉग लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं या सोशल मीडिया कैप्शन लिख रहे हैं, तीनों एस्पेक्ट्स को हम देख लेते हैं. तो देयर इज वन पार्ट वेयर यू हैव टू रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्म. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ डिफरेंट थिंग, रिसर्चिंग इज अ डिफरेंट थिंग. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस. रिसर्च होती है कि अगर मैंने आपको एक आर्टिकल लिखने को दिया है बेस्ट फ्रेंच फ्राइज रेसिपी, ठीक है, आई एम गिविंग यू एन आर्टिकल, उसका नेम है बेस्ट फ्रेंच फ्राइज रेसिपी. अब फ्रेंच फ्राइज बनाने की वही एक ही रेसिपी है. लाइक देयर आर सर्टेन चेंजेस जो लोग कर देते हैं, लेकिन रेसिपी काफी सिंपल है. यू नीड पोटैटोज, पिक इट अप, स्लाइस इट एंड देन यू फ्राई इट. दैट्स बेसिक. अब ये जो आपका एक बेसिक एलिमेंट है, अब ये सब आर्टिकल्स के अंदर सेम होगा. तो अब आप प्रोबेबली ये सोच रहे होंगे कि अगर सेम बात है, सब एक ही बात लिख रहे हैं, तो देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन योर कंटेंट एंड देयर कंटेंट. तो बहुत सीधी सी बात यह है कि हर किसी की रेसिपी सेम होगी, लेकिन बताने का अंदाज सबका डिफरेंट होगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन बताई है, या मैं आपको बता रही हूँ कंटेंट राइटिंग क्या होती है. आप यूट्यूब पर जाएं, आप अभी लिखें व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, आपको 36 डिफरेंट किस्म के लोग मिल जाएंगे जो डिफरेंट तरीकों से बता रहे होंगे कि फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्या होती है. ठीक है, सो दैट्स द थिंग विद एवरी राइटर, इट्स डिफरेंट. तो ये रिसर्च का जो मामला है यही होता है कि व्हेन यू राइट ऑन गूगल के बेस्ट फ्रेंच फ्राइज रेसिपी, यू नीड टू गो थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स के लोगों ने क्या लिखा, एंड देन यू गैदर योर इन्फॉर्मेशन और आप अपने अंदाज से उसको पेश करते हैं. दैट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग.
ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल्स देने हैं, रिसर्च करने के बाद आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है कि मैंने क्या एग्जांपल्स देने हैं, क्या टोन यूज करनी है, क्या मैंने लिखना है, दैट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट्स द प्रिपरेशन फेज, देन कम्स द राइटिंग फेज जिसमें आप लिखते हो। रिसर्च करने के बाद जो आपने लिखना है पूरा आर्टिकल, पूरा ब्लॉग, यू राइट इट डाउन, and then after you're done comes the third part, which is the proofreading and editing. Proofreading is exceptionally important क्योंकि माइनर ह्यूमन मिस्टेक्स इधर उधर हो जाती हैं, सो यू नीड टू प्रूफ रीड द आर्टिकल। प्रूफ रीडिंग के टाइम आपको बहुत सारे मिस्टेक्स नजर आएंगी, वो करने के बाद यू एडिट इट एंड योर कंटेंट इज रेडी। सो बेसिकली कोई भी किसी भी किस्म का कंटेंट हो, उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं प्रोसेस के, रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइटिंग, एंड देन देयर इज प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है, कि फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड मेजरली उसका क्या प्रोसेस होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने इसको करियर बनाना है आगे, तो उसके क्या स्टेप्स हैं, उसका क्या रोड मैप है। करियर बनाने के लिए अब डिफरेंट लोगों का एक डिफरेंट नज़रिया होता है। कुछ लोग कहते हैं जी पहले आप सेलेक्ट करें आपने क्या करना है, फिर आप पोर्टफोलियो बनाएं, फिर आप upward पे जाएं and stuff like that. I have a roadmap that I followed and that I recommend to all of my students. और मेरे students माशाल्लाह यही roadmap use कर रहे हैं. So I wanted to explain the same roadmap to you guys ताकि थोड़ी आप लोगों की हो जाएगी कि एक roadmap कैसे बनाया जाता है. Step 1 जो है, that's building a portfolio. Now building a portfolio का क्या मतलब है कि you need to have a bunch of samples ready for the kind of work that you want to do. आपने सबसे पहले बैठकर ये डिसाइड करना है कि कंटेंट राइटिंग में आप करना क्या चाहते हैं। आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, सोशल मीडिया कैप्शन लिखना चाहते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि शुरू में इंसान बहुत कंफ्यूज होता है। अब राइट नाउ यू प्रोबेबली थिंकिंग कि मैं ये तीनों कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। तो अब अगर आप ये तीनों काम कर सकते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि विच वन इज गोइंग टू बी योर expertise, which one you're going to be best at, which one you want to make a career out of. The best way to do that is to try all 3 of them. ठीक है? So what my recommendation to everybody is कि बेशक आपने blogs लिखने हैं या आपने articles लिखने हैं या आप social media content writer बनना चाह रहे हो, try करो हर चीज़ को. There's no harm in trying it out. जब आप try कर रहे होगे उसी में आपको realize हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं. अब first करें, आपने decide कर लिया मैं blogs लिखना चाहती हूँ, तो अब आप ब्लॉग्स किस कैटेगरी में लिखना चाहती हैं? ब्यूटी में, फैशन में, फिटनेस में, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ एंड फिटनेस, एग्रीकल्चर, लॉ, मार्केटिंग, बिजनेस, देयर सो मेनी इंडस्ट्रीज आउट देयर। अब आप किस इंडस्ट्री में लिखना चाहते हैं या लिखना चाहती हैं, तो यू नीड टू एक्सपेरिमेंट। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि एक्सपेरिमेंट करें। ब्यूटी ब्लॉग्स ढूंढें, गूगल पर जाएं, चैट जीपीटी इतना आसान हो गया, आप चैट जीपीटी पर जाएं, वहाँ पर लिखें give me 5 great topic ideas for blogs in the beauty and fashion category. वो आपको टॉपिक्स निकाल के दे देगा। Choose those topics, write 300-400 words का उसके ऊपर आप ब्लॉग लिखें and you know get into the habit of writing. अब ये जो आप लिख रहे हो ये बेसिकली आपके सैम्पल्स हैं। सैम्पल्स का मतलब क्या होता है कि ये मैंने ये जो मैं आगे किसी भी क्लाइंट को दिखाऊंगा किसी जॉब के लिए, आप कंटेंट राइटिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करना है ना आपने, तो आपके पास कंटेंट राइटिंग का कुछ लिखा हुआ जरूर होना चाहिए कि ये मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, ये मेरे राइटिंग स्टाइल है, दिस इज माय कैपेबिलिटी एंड दिस इज अ स्मॉल सैंपल दैट आई रिटन। वो सैंपल आपने लिखना है। अ बंच ऑफ सैंपल्स व्हेन दे कम टुगेदर इट मेक्स अ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो भी बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो के अंदर स्टार्टिंग में जो मेरा पोर्टफोलियो था, टू बी ऑनेस्ट, लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर बना हुआ था, उसके अंदर 4-5 डिफरेंट वर्ड फाइल्स पड़ी हुई थी ब्लॉग्स की और आर्टिकल्स की जो मैंने लिखी थी। और जब मैंने अप्लाई करना होता था थ्रू मैसेंजर और थ्रू ईमेल, तो मैं वही फाइल ही फॉरवर्ड करती थी। सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू द टेक्निकलिटी कि मैं अब पहले वेबसाइट बनाऊं या मैं ऑनलाइन कहाँ पर पेस्ट करूं या मैं फैंसी किस्म की पोर्टफोलियो। डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट स्टार्ट एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू आता जाता है और आपकी ऑनलाइन पोर्टफोलियोज भी बन जाती है। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं अभी बताती हूँ। तो एक सैम्पल्स आपने जो है वो इकट्ठे करने हैं। बेशक आप कंटेंट राइटिंग सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग करना चाह रही हैं या ब्लॉग राइटिंग करना चाह रही हैं या आर्टिकल राइटिंग, वो भी किस फील्ड में करना चाह रही हैं, डिसाइड करें या ट्राई करें जो भी आपने ट्राई करना है, एंड देन मेक सैम्पल्स एंड पुट देम समवेयर। अच्छा, अब पोर्टफोलियो के हवाले से एक मैं बात बताती जाऊँ कि अगर फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में जो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स के
करना चाहते हैं आगे कंटिन्यू, तो आई हैव अ वेबसाइट freelancingbyfaye.net, और उसके इट्स फ्री फॉर एवरीबडी बाय द वे, और उसके ऊपर जाके आप अपने सैम्पल्स अपलोड करके आप एक पोर्टफोलियो बना सकती हैं बहुत अच्छी सी ऑनलाइन। हम अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, उसके अंदर हम सैम्पल्स लिखवाते भी हैं, एंड देन वी गाइड द स्टूडेंट्स के उन्होंने हमारी वेबसाइट पे जाके पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। बट इवन इफ यू आर नॉट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, यू कैन स्टिल गो ऑन टू द वेबसाइट, पेस्ट योर सैम्पल्स ओवर देयर, और एक अला किस्म की आपकी ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो बन जाएगी। अब स्टेप 1 क्या हो गया कि आपने डिफरेंट कैटेगरीज के काम जो है वो ट्राई कर लिए। ट्राई करने के बाद आपने एक बंच ऑफ सैम्पल्स बना लिए कि ये मैं इस तरह का काम मैं कर सकती हूँ, these are a bunch of samples of the kind of work that I can deliver, and now you move on to step number 2, which is choosing your platform. Now what does choosing your platform mean? आपने बहुत दफा सुना होगा फ्रीलांसिंग के साथ एक नेम अटैच होता है अपवर्क का, ठीक है? Upwork, Fiverr, freelancer.com, Guru, all of these different platforms are usually used simultaneously with the word freelancing, ऐसे ही है। So, लेकिन इसके अलावा और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, which for example कोई लोग कहते हैं जी फेसबुक पे आप स्टार्ट कर दें फ्रीलांसिंग, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? इट्स अ कॉमन मिथ कि आप फ्रीलांसिंग सिर्फ अपवर्क पे कर सकते हैं या आप फाइवर पे कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होती है कि यू आर ऑफरिंग अ सर्विस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है? एक होती है 9 to 5 जॉब। अगर आप 9 to 5 कंटेंट राइटर होते तो आप 9 to 5 जॉब पे जाए, एक भी आपका क्लाइंट होता, वहां पर आप जाते 9 से 5 बजे तक आप कंटेंट राइटिंग करते, यू आर हायर्ड एज अ कंटेंट राइटर देयर फुल टाइम, एंड यू कम बैक होम एंड देन यू रिपीट द प्रोसेस। फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स आर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरह से, ये वो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, साल का प्रोजेक्ट है, व्हाटएवर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। सो दैट्स द डिफरेंस फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग आप देखे जाए तो सिर्फ अपवर्क पे नहीं, वो कहीं भी हो सकती है। आप अगर एक कंटेंट राइटर हैं, फर्ज करें आप आर्टिकल्स लिखती हैं, तो अगर आप अपने व्हाट्सएप पर जाकर एक ऐड लगा देती हैं कि आई एम अ कंटेंट राइटर, और आपके कॉन्टैक्ट्स में से ही कोई वेबसाइट ओनर आ जाता है और वो कहता है कि मेरी ऐसे फैशन वेबसाइट है, मुझे ब्लॉग्स लिखवाने, तो आपको क्लाइंट मिल गया। हालांकि आप अपवर्क पे नहीं गए, आप फाइवर पे नहीं गए, आप कहीं भी नहीं गए, आपको व्हाट्सएप से क्लाइंट मिल गया। अब आप कहाँ पे फ्रीलांसिंग कर रहे हो? व्हाट्सएप पे, ठीक है? इसी तरीके से the same thing happens on Facebook as well. आप Facebook पे गए हो, you find Facebook groups, freelancing groups, वहाँ पे आप आपने अप्लाई किए, आपको वहाँ पे क्लाइंट मिल गए, तो आप वहाँ पे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, you don't have to go to Upwork. Similarly, अब अगर आप एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं, आपने कहीं पे ऐड लगा दिया है, कहीं पैम्फलेट वगैरह कोई दे दिया, और आपको कोई आ गया है पर्सनली बताने के लिए कि मेरी वेबसाइट है, मुझे ऐसे लिखवाना है, तो यू कैन स्टिल ऑफर देम योर सर्विसेज। मीनिंग के अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, दिस इज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन कि सिर्फ यही प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ यही है नहीं, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, जिनमें से जैसे मैंने भी आपको बताया है, WhatsApp is a platform. You can start your freelancing career on WhatsApp. You can start your freelancing career on Facebook, Instagram. You can start on Upwork, Fiverr. ये सारे तो फिर खैर है ही। एक और तरीका भी होता है, वो होता है कि अगर आप Facebook, Insta पे फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो there are 2 ways to do that. एक होता है कि आपने अकाउंट बना लिया है, ठीक है, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स। एक होता है इनबाउंड लीड्स, जो पहला वाला है होता है आउटबाउंड लीड्स। जो इनबाउंड लीड्स होती हैं बेसिकली वो होती हैं कि हमने एक ब्रांड बनाया इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, एंड वी आर अट्रैक्टिंग पीपल। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं अगर अपना बताऊं, तो आई हैव नेवर बीन ऑन अपवर्क, आई हैव नेवर बीन ऑन फाइवर, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी, मैंने बताया उस वक्त हालात कुछ डिफरेंट थे। तो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड फ्रॉम फेसबुक ग्रुप्स। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट ओवर देयर, एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो सारे इनबाउंड हैं। आई नेवर हैड टू गो लुक फॉर क्लाइंट्स कम टू मी, मैसेज मी कि ये सर्विसेज चाहिए ऐसे ऐसे, एंड दैट्स हाउ आई गेट क्लाइंट्स। तो ये इट टेक्स सम टाइम, बिकॉज इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ ब्रांड फॉर योरसेल्फ, लेकिन ये भी एक तरीका है। सो स्टेप 2 है कि यू नीड टू चूज योर प्लेटफॉर्म। Which type of leads do you want? Do you want outbound leads or do you want inbound leads? अगर आपने outbound करनी है
तो which platform would you choose? Are you choosing Facebook, Insta, LinkedIn, Upwork, Fiverr? Which of these are you choosing? स्टेप अगर आपने इनबाउंड लीड्स करनी है तो फिर आप कौन से प्लेटफॉर्म पे इनबाउंड लीड्स बनाना चाह रहे हो? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कहाँ पे आप अपना अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हो? दीज आर द थिंग्स टू चूजिंग योर प्लेटफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात मैं करती रहूँ कि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि अगर आपने अभी अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, तो आप अपवर्क और फाइवर पर जाएं। उसकी लॉजिक ये है कि अपवर्क एंड फाइवर इज एन इंटरनेशनल लेवल का सोफिस्टिकेटेड फ्रीलांस मार्केटप्लेस, और वहाँ पर इस वक्त सैचुरेशन है कंटेंट राइटर्स की, लेकिन दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दिस कि देयर इज अ सैचुरेशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल इंटरनेशनल कंटेंट राइटर्स। अब इसमें ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप उनके लेवल की नहीं है और एनीथिंग, लेकिन जब आप बिगिनर होते हो, आपकी प्रोफाइल वीक होती है, आपका कॉन्फिडेंस वीक होता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस वीक होता है, एंड आप जब वहाँ पर जाते हो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। दूसरा ये कि कंपटीशन बहुत हाई है, आप बिल्कुल नए हो, वहाँ पर प्रोफेशनल लोग बैठे हैं 15-15 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड। होता ये है कि उनको अपवर्क यूज़ भी नहीं प्रॉपर करना आ रहा होता, जो क्लाइंट्स हैं उनके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये पूरा सिनेरियो मेरे लिए होता ही है कि a lot of people they don't get clients in the first few months, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका they start feeling discouraged and then उनका करियर शुरू होते ही वहीं पर खत्म हो जाता है। उनको ये गाइड करने वाला कोई नहीं होता कि आपने स्टार्ट ही गलत किया है। आपके लिए प्लेटफॉर्म जो था वो अपवर्क, फाइवर वगैरह ठीक नहीं था, बिकॉज दैट वाज वे टू अबव योर लेवल। तो मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि आप फेसबुक से स्टार्ट करें। अगर आपके पास स्किल है, स्किल नहीं है, स्किल भी सीखना चाह रहे हो, एक्सपीरियंस भी हासिल करना चाह रहे हो, थोड़ी सी मनी भी कमाना चाह रहे हो कि जॉब मिल जाए कोई छोटी मोटी, तो फेसबुक इज द बेस्ट, बिकॉज वहाँ पर क्लाइंट्स आते ही इस नीयत से हैं कि हमने बिगिनर्स को हायर करना है, थोड़ा बजट है, काम कराना है, हम सिखा देंगे, ये माइंड सेट होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्लाइंट्स आपको अपने मतलब के मिलेंगे। अब फर्ज करें आपने ट्रेनिंग ले ली है, आपने कोई कोर्स वगैरह कर लिया है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, यू हैव द स्किल बट यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव एक्सपोजर, यू नीड अ क्लाइंट, देन लिंक्डइन इज द बेस्ट, बिकॉज लिंक्डइन पर प्रोफेशनल लोग होते हैं, वहाँ पर क्लाइंटल थोड़ा सा ऊपर लेवल का होता है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल से थोड़ा नीचे होता है, मीडियोकर लेवल का। सो इफ यू आर, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं कहाँ पर थी? सो इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ और आपके पास स्किल है लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं, You were talking about LinkedIn. LinkedIn. So फिर आप LinkedIn पर जाएं। LinkedIn पर जैसे मैंने बताया आपके मतलब की अब आपके पास लेट्स से कुछ मंथ्स के बाद एक प्रॉपर प्रोफाइल बन चुकी है, एक तरह से आपका मतलब वर्क एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, एवरीथिंग, you are confident, you have the work history, you have everything that's needed. Now go on Upwork. अब आप Upwork के लिए तैयार हो, ठीक है, क्योंकि ना अब आपकी ग्रूमिंग भी हो चुकी है प्रोफेशनल, एंड आपको you have a strong work history. अब आप वहाँ पर there's a better chance to survive. अब सही वक्त है। तो before most of you do this, I just wanted to say this कि एकदम से छलांग जो है वो Upwork पर नहीं लगानी। आपका दिल कर रहा है आप लगाएं। सही कह रही है, मुझे बहुत पसंद है। So एकदम से छलांग अगर लगाएंगे Upwork के ऊपर, तो there's a high chance कि you will be disappointed and it's I'm so sorry, ma'am. So sorry. You can continue. It's okay. अच्छा जी, तो अब फिर नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटफॉर्म की चूजिंग की बात हो गई कि भाई प्लीज मेक श्योर कि चूज द प्लेटफॉर्म वेरी वाइजली, अपने लेवल का प्लेटफॉर्म चूज करें इन द बिगिनिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट योर क्लाइंट हंटिंग। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है, आपने कहाँ पर जाकर स्टार्ट करना है, किस वे से स्टार्ट करना है, इनबाउंड लीड्स, आउटबाउंड लीड्स, आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। अब आपने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करनी है। नाउ यू आर रेडी, you have thought about it, and you have planned it out, you have a bunch of samples in your portfolio. अब आप क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करें। अब बात करते हैं, जब ये क्वेश्चन भी आया था कि इंस्टा और लिंक्डइन या एफबी पर क्लाइंट ढूंढना हो तो फिर कैसे करें। अब क्लाइंट हंटिंग की बात अब करते हैं कि अब फर्ज करें कि आपने
स्टार्ट किया है फेसबुक से, तो अब आपने फेसबुक पे क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं? सबसे बेहतरीन तरीका या सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वो ये है कि फिर बिगिनर तो आप फ्रीलांसिंग के जाकर बहुत सारे ग्रुप्स ढूंढें, ठीक है? जस्ट राइट फ्रीलांसिंग ग्रुप या कंटेंट राइटिंग ग्रुप। अब मैं एग्जैक्ट ग्रुप इसलिए नहीं बता सकती बिकॉज एक ही नाम के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है? सो मैं एग्जैक्टली आपको बता भी दूंगी, उसका कोई फायदा नहीं होना। अच्छा, so go on Facebook and search for a bunch of freelance content writing groups, ठीक है? Different keywords use करें like freelance content writing, content writers Pakistan, Pakistani freelance content writers, all of these different types of keywords आपको different groups आ जाएंगे। Now check the ones that are most active. अगर किसी की 6 महीने पुरानी पोस्ट रही है इसका मतलब है छोड़ दें। अगर वो ग्रुप्स में डेली की पोस्टिंग हो रही है और आपके मतलब की जॉब्स लग रही हैं तो देन ज्वाइन दैट ग्रुप, दैट वो आपके ज़्यादा काम करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें एंड बी अलर्ट, ठीक है? अब आपको वहाँ पर अलर्ट रहना है कि आपके काम की जॉब जैसे ही आएगी आपने उस जॉब को पढ़ना है। जॉब पोस्टिंग के अंदर लिखा होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, डीएम करना है या ईमेल करना है या कमेंट करना है, जो भी उसके अंदर लिखा होगा, यू हैव टू डू दैट। एंड उनको फिर आपने अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उन्होंने कहा मैसेज करें, आप उनको मैसेज करें, आप उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि मैं लेवल 1 कंटेंट राइटर, मैं भी बिगिनर हूँ, दिस इज माय सैम्पल्स एंड दिस एंड दैट। अगर आपका कोई इनिशियल किस्म का ऑफर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिगिनर लेवल पे ये ऑफर दे सकते हो कि जी यू नो आई कैन गिव यू डिस्काउंट कोड सॉरी डिस्काउंटेड रेट्स बिकॉज आई एम अ बिगिनर या इन रिटर्न ऑफ अ टेस्टिमोनियल और समथिंग लाइक दैट। बिगिनर्स को यूजुअली ये जो टैक्टिक्स हैं ये करने पड़ते हैं अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो आप उनसे बात करें, उनको अपने सैंपल्स साथ भेजें। डू नॉट वेट फॉर द क्लाइंट टू मैसेज यू कि यू नो हमें आपका पहला मैसेज पसंद आया, आप सैंपल्स भेज दें। डू नॉट डू दैट, क्लाइंट्स विल नॉट आस्क फॉर द सेकंड टाइम, लेजिटिमेट क्लाइंट्स विल नॉट आस्क। आप उनको ये बिल्कुल ना कहें हेलो आई एम इंटरेस्टेड, हेलो आई वांट टू वर्क, please let me know and I will send you my samples. Do not do that. I can't repeat that enough. They will not ask, they will not even respond. आपने पहला मैसेज बनाना है, उसके अंदर आपने अपनी इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, उनको बताएं कि मैंने जॉब पोस्टिंग पढ़ी है, उसमें जो ये चीज़ें हैं मुझे समझ आ गई हैं, अवेलेबल एट दिस आवर्स जो आपने बताए हैं, पे रेट भी मुझे ठीक लग रहा है और ये मेरे सैम्पल्स हैं। एंड इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज लेट मी। Do not make the client ask for further information. They will never ask. They will move on to the next person. ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया फेसबुक। About pricing, pricing का भी देखते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो फिर प्राइसिंग को भी देख लेंगे। अच्छा, स्टेप फेसबुक डिस्कस हो गया। अगर हम लिंक्डइन को देखें, लिंक्डइन पर भी बिल्कुल सेम, लिंक्डइन पर बल्कि एक ऑप्शन होता है जॉब्स का भी। लिंक्डइन पर यू कैन गो एंड यू कैन एक तो अपनी सेटिंग्स में जाके आपने ऑन करना है कि अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है? पहली चीज़ तो ये होगी। फिर उसके बाद देयर इज अ होल कैटेगरी ऑन लिंक्डइन जिसमें जॉब्स अवेलेबल होती हैं, यू कैन गो ओवर देयर और आप वहाँ पर जाके यू नो स्विफ्ट थ्रू द जॉब्स एंड कीप अप्लाइंग टू जॉब्स। उनके ऊपर भी मतलब एक इंस्टेंट अप्लाई होता है और उस तरह के ऑप्शंस होते हैं। इट्स नॉट दैट टेक्निकल, इट्स वेरी इजी, तो उस पर भी। फिर लिंक्डइन पर एक और जॉब ढूंढने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि वो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर तो और कंटेंट राइटर्स को जाकर फॉलो करें, उनके काम के साथ इंगेज करें, उनकी नज़रों में आए, जिसका उर्दू में कहते हैं थोड़ा सा नज़रों में आए, कनेक्शंस बनाएं। बेशक आप खुद कंटेंट पोस्ट ना करें, दैट्स फाइन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने लिंक्डइन पे अगर अकाउंट बना लिया तो आपने लाजमी कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, इट्स फाइन, आप ना करें, बट नेटवर्किंग वहाँ पर बनाएं, ठीक है? नेटवर्क विद अदर पीपल ऑफ योर फील्ड, बिकॉज लिंक्डइन गेम ही सारी नेटवर्किंग की है। जितने कनेक्शंस होंगे आपके अच्छे उतना आपको रेफरल आने का बहुत अच्छा चांस होता है। मेरे क्लाइंट्स इस तरह के बहुत सारे हैं, मैंने खुद भी इस तरह से बहुत सारे लोगों को काम दिया है। कैसे कि आई न्यू देम थ्रू लिंक्डइन, दे फॉलोड मी, वी यूज्ड टू एंगेज, कभी बात होगी थोड़ी बहुत, एंड मुझे अगर कोई क्लाइंट आया है मुझसे अब ये काम नहीं होगा या मेरे पास टाइम नहीं है या ये मेरा डोमेन नहीं है, सो व्हाट आई डू इज कि आई विल रिमेंबर कि आई वाज नेटवर्किंग विद दैट पर्सन, विद दैट गर्ल ऑन लिंक्डइन, सो आई विल टेल हर कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और इस तरीके से मुझे भी बहुत सारे काम आए। सो लिंक्डइन जो है वो गेम सारी नेटवर्किंग की है। सो इफ यू वांट टू गेट क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, डेफिनेटली डू दैट, नेटवर्किंग करें लिंक्डइन पे जाके। तकरीबन मुल्क बढ़ चुका है और आपको जो है फ्रीलांसिंग की पड़ी है। ओके, सो नेक्स्ट अगर इंस्टाग्राम पे हम चले जाएं, इंस्टाग्राम का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग
करके इनबाउंड लीड्स इकट्ठी करते हैं, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर भी सेम काम कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाके कीवर्ड्स और हैशटैग्स को फॉलो करें। फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स नीडेड, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, स्टफ लाइक दैट। इस तरह के जो आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स उनको फॉलो करें एंड उस पर जो जॉब्स आती हैं अप्लाई टू दोज जॉब्स, ठीक है। दैट्स अ जनरल ओवरव्यू ऑफ हाउ यू कैन यूज दीज platforms to get your clients for freelance content writing clients, ठीक है। तो ये हो गई क्लाइंट हंटिंग। अच्छा, अब एक सवाल जो बहुत ज़्यादा बिगिनर से आता है वो ये है कि जी AI वर्सेस ह्यूमन कंटेंट राइटर्स, कि भाई AI इतना वो हो गया है, AI आ गया है, चैट जीपीटी वगैरह आ गया, तो फिर अब हम क्या अभी भी हमारे लिए स्कोप है हम कंटेंट राइटिंग ज्वाइन करें? क्योंकि जब चैट जीपीटी आ गया तो फिर हमसे कौन लिख पाएगा? चैट जीपीटी आ गया, इसमें कोई शक नहीं है कि चैट जीपीटी इज अ ग्रेट टूल, बट वी हैव टू रिमेंबर कि इट्स स्टिल अ टूल एंड इट्स अ मशीन। AI के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो ह्यूमन कंटेंट राइटर्स के पास हैं। फॉर एग्जांपल AI का काम पढ़ते वक्त यू कैन इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कि ये किसी कंप्यूटर ने लिखा है, ठीक है। जो ह्यूमन कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, उनके राइटिंग का स्टाइल ही डिफरेंट होता है फ्रॉम AI। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि AI जो है वो आपको सामान ढूंढ के दे देगी, उसकी क्रेडिबिलिटी का कोई वो नहीं होता। यू विल स्टिल हैव टू डू योर ओन रिसर्च कि कौन सा कोड, कौन सा फैक्टर, कौन सा स्टैट ठीक बताया नहीं बताया, क्योंकि AI को नहीं पता कि क्या चीज़ सच है क्या चीज़ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं एक मेडिकल आर्टिकल लिख रही हूँ और मेरी फील्ड खुद की फिजियोथेरेपी है, राइट, तो मैं अब अगर लिख रही हूँ कि जी स्प्रेन अगर हो गया, एंकल स्प्रेन, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब मैंने अगर चैट जीपीटी पे लिखा है, चैट जीपीटी मुझे कोई 2000 डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स ला के दे देगा। ये मुझे एज अ ह्यूमन एंड एज अ डॉक्टर कंफर्म करना है कि इनमें से कौन से ठीक है कौन से नहीं, ठीक है। सो दैट एंड अ लॉट ऑफ अदर रीजंस इज व्हाई AI इज मेंट टू बी अ टूल, इट्स नॉट मेंट टू रिप्लेस यू। हाँ, अगर आप वही कंटेंट सबमिट करा रहे हो जो AI सबमिट करा रहा है, जो कंप्यूटर दे रहा है वही आप दे रहे हो, फिर तो डेफिनेटली AI इज गोइंग टू रिप्लेस यू। बट if you are good enough, if you are a very creative writer जिसका अपना एक signature style है, जो AI को as a tool use करके अपना काम मजीद बेहतर कर रही है, तो you have no reason to fear AI, because like I said, AI is definitely still a tool. It is not meant to replace you, and I don't see it happening in the future as well. So that, फिर अर्निंग पोटेंशियल जी, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कितना एक कमा लेंगे? ये सवाल भी बहुत कॉमनली आता है और बिल्कुल वैलिड है। जिस तरह के हालात हैं, फ्रीलांसिंग किसी लिए पड़ी हुई है कि जिस तरह के हालात हैं, ईच टू हिज ओन, वी नीड टू थिंक अबाउट कि भाई गुजारा कैसे करना है, राइट। तो फिर स्कोप पोटेंशियल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये आता है कि अर्निंग पोटेंशियल क्या है। अर्निंग पोटेंशियल माशाल्लाह, आप अगर लोकल क्लाइंट से शुरू होते हो और आप थोड़ा सा काम आपको करते हो, मैं आपको बताऊं, पहला जो मैंने काम किया था बैक व्हेन आई वाज इन डीपीटी थर्ड ईयर, तो मेरा जो पहला क्लाइंट था, शी यूज्ड टू पे मी 6000 रुपीज पर मंथ, एंड दैट वाज, उस वक्त मेरे लिए बहुत था, बिकॉज मुझे सिर्फ कैंटीन के पैसे चाहिए थे और कुछ नहीं, एंड और कोई जिम्मेदारी वगैरह थी नहीं। सो दैट वाज फाइन। सो मीनिंग कि आप 6000 से शुरू करके यू कैन स्केल अप टू 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर, ठीक है। देयर आर मिलियनेयर्स आउट देयर हु आर राइट नाउ माशाल्लाह अर्निंग सो मच ओनली थ्रू फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, क्योंकि फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में एक आपका एक प्रॉपर रोड मैप होता है जिससे आप ऊपर से ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। आप लोकल से स्टार्ट करें, लोकल क्लाइंट आपको कम पे करेगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो बिगिनर लेवल पे तो बिल्कुल ही आपको लर्निंग ज़्यादा होती है, पैसा बहुत कम होता है, ठीक है, बिकॉज वो आपको सिखा रहे होते हैं, उनके पास एक बहुत सीधा सा जवाब होता है कि भी आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीखने के आहिस्ता आहिस्ता एज योर एक्सपीरियंस आपका जैसे जैसे बढ़ता है उस तरीके से आपके चार्ज भी बढ़ते हैं। फिर लोकल मार्केट में आप थोड़े से ऊपर आ जाते हो कि यू आर एन एक्सपीरियंस राइटर लेकिन स्टिल चार्जिंग लोकल, ठीक है। उसके बाद फिर आप जंप मारते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज यू नो वो ज़्यादा बेहतर पे करते हैं, उनके पे रेट्स बहुत बेहतर होते हैं। फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स में भी आपको वो मिलते हैं जो आपको अभी लो पे करेंगे, बिकॉज यू आर
उनके लिए अवेलेबल, फिर आप उनसे भी ऊपर ऊपर जाते हो, ठीक है। फिर एक लास्ट स्टेज आता है where you make a proper agency for yourself, जिसमें आप और कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं, आपकी प्रॉपर एजेंसी होती है that delivers content to people या to businesses and stuff like that। तो वो एक फिर वो $multi-million एजेंसी तक की बात जाती है। सो मीनिंग कि आप 6,000 भी कमा सकते हैं, आप 6 लाख भी कमा सकते हैं और आप 60 लाख भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो अर्निंग पोटेंशियल इसके अंदर बहुत है माशाल्लाह। So that basically concludes most of it कि content writing क्या होती है, mentality in content writing। अच्छा इसको ना अभी देखते हैं। ये basically है what content writing is, the basics of it, and if you want to learn more कि content writing के अंदर keywords, SEO, ये वो फलाना ढिमकाना, formatting, ये वो चीज़ें ये थोड़ी डिटेल में आ जाती हैं, टाइम कम था so we just did an overview। लेकिन इससे आपको थोड़ा बहुत ये अंदाजा जरूर हो चुका होगा कि does it sound like something you want to do, ठीक है। ओवरव्यू का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि it gives you a good idea of whether you should be continuing, ठीक है, because हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती, तो उनको बहुत अरसा लग जाता है यही फिगर आउट करने में कि क्या मुझे करनी चाहिए, क्या कि मेरे लिए है भी सही या नहीं। सो आई थिंक इस ओवरव्यू से आपको थोड़ा ये अंदाजा हो चुका होगा कि इंटरेस्ट स्पार्क हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है then you should go forward with this। अगर नहीं हो रहा है and you feel like this is not my cup of tea, then that's fine as well, that's good। क्योंकि आपका एक चीज़ वो नैरो डाउन होगी कि फ्रीलांसिंग करनी है लेकिन कंटेंट राइटिंग नहीं करनी। सो फॉर दोज हु फाउंड दिस हेल्पफुल एंड वांट टू कंटिन्यू, उनका भी फायदा है। फॉर दोज हु फेल्ट लाइक ये मेरे काम की चीज़ नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, उनका भी फायदा है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर, मैडम मैं फिर भी यही कहूंगा कि मुल्क बढ़ चुका है, फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं पड़ा। आपको अगर आगे जाना है, आगे सीखनी है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, तो आई हैव लिस्टेड we have an Instagram, we have a LinkedIn, we have an email, you can get in touch। You can also check out our website freelancing by faye.net, and that basically concludes it। So if you have any questions जो आप लोग पूछ रहे थे, sensible useful questions, I am here for you guys। Yes, I have one question about freelancing. You're just like particularly discussing about the content writing. What can be other categories like useful for the students, for example, data entering and video editing? So, like, can we offer that as well? And what's the scope in there? And if you can let me know about something of that as well, because we Okay. all and we all are definitely looking for some ways to generate some pocket money or to be financially dependent. So yes, content writing is a very good option as well, but what about data entering and other basic categories that are also introduced in freelancing? Okay, so I think options जो हैं वो बेशुमार हैं। डाटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब फ्रीलांसिंग की मतलब हर फील्ड के अंदर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन बात ये होती है कि आपका इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप राइटिंग अच्छी कर लेते हैं तो कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, दीज विल बी आप इसमें बहुत अच्छे रह जाओगे। अगर आपका क्रिएटिव साइड पे आर्टिस्टिक साइड पर हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, दीज विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि वो आपका दिमाग उस चीज़ में ज़्यादा चलता है। तो जाएं उसी तरफ जहां आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है। डाटा एंट्री, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो चीज़ जितनी मुश्किल लग रही होती है ना, उसमें पैसा भी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी एक चीज़ होती है सोचने वाली कि अगर आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं, डाटा एंट्री बहुत आसान है लेकिन उसमें पैसा कम है। कंटेंट राइटिंग क्योंकि क्रिएटिव है तो इसके अंदर पैसा ज़्यादा है। ये चीज़ भी अगर आप इसको जैसे अभी आपने बताया, हर कोई चाहता है कि हम कुछ ना कुछ अर्न करें, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, बिकॉज मुझे बिल्कुल वो नहीं है कि जी क्या बात करनी है क्या नहीं। वी आर बीइंग वेरी रियलिस्टिक हियर, बिकॉज फ्रीलांसिंग करनी है, साइड इनकम कर रहे हो, आप पैसे के लिए कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि डाटा एंट्री में आसानी है। डाटा एंट्री इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ थिंग। आई एम नॉट सेइंग इट्स लाइक बिल्कुल ही आसान, वो भी उसमें भी मेहनत होती है, लेकिन उसके अंदर
क्रिएटिविटी साइड कम है, उसके अंदर रिसर्च ज़्यादा है, एंड देन यू हैव टू मेक एक्सेल शीट्स एंड यू हैव टू कलेक्ट डाटा. डाटा एंट्री का नाम से ही पता लग रहा है ना कि डाटा एंटर करना है इन अ शीट, सेंड इट टू क्लाइंट, दैट्स योर जॉब. लेकिन उसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल कम है. ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एंट्री अर्निंग पोटेंशियल है, बट नॉट लोकली. लोकली कैनवा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सो कैनवा की वजह से लोकल इतनी उसको ज़्यादा नहीं होती. बट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए, क्रिएटिविटी ज़्यादा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पैसा भी ज़्यादा है. ठीक है, सो ये एक चीज़ है. बेशक बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं. यू हैव टू सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड थिंक कि मेरा दिमाग किस चीज़ में ज़्यादा चलता है, एंड देन यू हैव टू सी कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है इन फ्रीलांसिंग. ऑप्शंस बेशुमार, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट. Does that answer your question? Assalamualaikum. Okay. Okay, Fiza, I have like initially, can I just say one thing? That is कि मैं खुद भी सब copywriting कर रही हूँ, मतलब और अच्छा earn कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. I think एक चीज़ जो मैं यहाँ पे highlight करना चाहूँगी वो ये कि जो आपने जैसे अपनी initial job का जिक्र भी किया कि उसमें आपको कम पे हो रहा होता है, but usually लोग इसलिए hire करते हैं because they trust you and they already trust your English language. जब हम पर्सपेक्टिव बार होता ही है कि हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होता है. जब आप बैक एंड फोर्थ जाते हो ना, तो आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है एंड काम खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाता है इर्द गिर्द से और ज़्यादा. ठीक है, सेकेंडली हाँ ठीक है. अब तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है वो ये कि जैसे आपने अपनी वेबसाइट का जिक्र किया, तो मैंने इसी वक्त अपनी वेबसाइट गूगल के ऊपर सर्च की थी, तो आई वाज अनएबल टू नेविगेट ऑन इट. मतलब उधर आ रहा था कि डोमेन नेम अगर आपने ढूंढना हो या समथिंग लाइक दैट, इफ इट्स पॉसिबल तो आप एक दफ़ा स्क्रीन पे अपनी वेबसाइट ओपन करके नेविगेट थोड़ा सा दिखा सकते हो नेविगेशन. हो जाएगा मेरे लिए, बट आई थिंक आप .com लिख रहे होगे. freelancingbyfaye.com है ना? नहीं, वो नहीं लिखना. freelancingbyfaye.net लिखना है एंड दैट विल वर्क. हाँ, बिकॉज आपके लिंक्डइन के ऊपर .com लिखा हुआ है. That must have been a mistake. मैं उसको ठीक करूँगी. Okay. And the last one is, do you have any good group? मतलब अब जैसे इस वक्त मुझे कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ. देवर लाइक कि आप मुझे प्रॉपर अपना प्राइस चार्ट बना के भेज दो, तो आई वांट कि हम लोग आपको प्रॉपरली टेकअप कर लें. बट द प्रॉब्लम वाज आई डिडंट नो कि मैं प्राइस चार्ट स्टार्ट भी कहाँ से करूँ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप आपस में डिस्कस कर सको प्रोफेशनली एंड अच्छे लोग जिस ग्रुप के अंदर और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन इट. गो टू लिंक्डइन पर करें ये काम. लिंक्डइन पर ना कनेक्शंस बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि व्हेन यू आर स्टक इन सिचुएशंस लाइक दिस, go over there and you write just one little question, guys how much are you currently charging, मुझे कमेंट्स में बता दें, नहीं तो मुझे डीएम कर दें. जितने भी लोग हैं वो मतलब इसमें आपका अगर 100 लोग भी आपके कनेक्शंस में हैं तो 50 ज़रूर आपको बताएंगे थोड़ा बहुत. उसको आपका मार्केट एनालिसिस हो जाएगा कि मेरे लेवल के, मेरी एरिया के, मेरे फील्ड के लोग इस वक्त कितना चार्ज करें. ठीक है. एक सिचुएशन में एक और भी आपको मैं टिप दूंगी, वो ये कि अगर आप बिगिनर हो, एब्सोल्यूट बिगिनर, और आपको चार्जेस का नहीं पता लग रहा, तो जब भी कोई क्लाइंट आपसे चार्जेस की बात करे, थ्रो द बॉल बैक इनटू देयर कोर्ट. Let them give you the code. No, I'm a mediocre level, but the problem is कि अभी तक मैं 1 या 2 मतलब मैं खुद अपनी मर्जी से मतलब mediocre तक चली गई हूँ लेवल. बट ये कि मैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर रही होती थी कि फॉर इंस्टेंस कि क्या अवेलेबिलिटी है, क्या फिजिबिलिटी है, उस हिसाब से मुझे टेकअप करना है. बट मेकिंग अ प्रॉपर चार्ट और पोर्टफोलियो, I've never done that. So I think we can take the next question as well from Marine Naveed. Can you please ask your question? Marine Naveed. Okay, until then, we can ask questions from the chat box. Ma'am, how to make your first experience as a social media marketer or SEO? Sorry, समझ नहीं आई. Question समझ नहीं आया. Ma'am, it's written in the chat box. How to make your first experience as a social media marketer or SEO?
अच्छा, एसईओ वाला पार्ट तो मुझे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन करना चाह रहे थे, लेकिन आई थिंक व्हाट दे मीन टू आस्क इज के एक्सपीरियंस अपना स्टार्ट कैसे करें एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, हाउ टू गेट द फर्स्ट एक्सपीरियंस, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। आई एम अज्यूमिंग दैट आंसर दैट। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो किसी भी फील्ड के अंदर, पहला एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल अब आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, अब आपको कोई ब्रांड चाहिए, कोई बिजनेस चाहिए कि इसके साथ काम करूंगा तो मुझे कोई एनालिसिस मिलेगा, कोई डाटा मिलेगा अपने पोर्टफोलियो पे लगाने के लिए कि भी मैंने ये कैंपेन की थी इस ब्रांड के साथ और ये मेरे टोटल जो है वो उसके एनालिटिकल रिजल्ट्स आए हैं। अगर तो यही क्वेश्चन, आई होप यही क्वेश्चन, तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज कि अपने सर्कल के अंदर कोई ऐसा बिजनेस ढूंढें जिसको आप डिस्काउंटेड या फॉर फ्री उनके साथ एक बार्टर कोलैबोरेशन कर सकें। मैंने भी जब सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट की थी तो मैंने यही किया था, बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड अ प्रोफाइल, अ पोर्टफोलियो। सो व्हाट आई डिड वाज कि आई वेंट इनटू माय ओन सर्कल, जो मेरा पर्सनल सर्कल था उसके अंदर यू नो बहुत आई फाउंड अ वुमन, मेरी अपनी जानने वाली थी, उनका एक बिजनेस था ज्वेलरी का। सो आई डिड अ बार्टर कोलैबोरेशन विद देम। आई सेड आपको सोशल मीडिया की सर्विसेज चाहिए, मुझे प्रोफाइल बनानी है, सो लेट्स डू दिस थिंग, आई विल ऑफर यू माय सर्विसेज ऑन डिस्काउंटेड रेट्स फॉर 2 months। उस 2 months के अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू माय सर्विसेज फॉर डिस्काउंट और फॉर फ्री, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू कलेक्ट डेटा, आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद योर प्रोफाइल, आई एम गोइंग टू डू द वर्क ऑन योर प्रोफाइल, आई एम गोइंग टू हैव द डेटा। अब वो 2 months के बाद क्या हुआ कि मेरे पास इनफ डाटा था और उनका काम हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सेकंड एक्सपीरियंस में आप उस फर्स्ट एक्सपीरियंस को लेवरेज करते हो कि आई डिड दिस वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, अभी ये आप देख लें, एंड सिंस अभी मैंने स्टार्ट किया 50% डिस्काउंट ऑन द सर्विसेज, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, जो भी है वो करके, एंड देन दैट्स हाउ यू बिल्ड अप। अब 2 प्रोफाइल्स हो गई आपके पास या 2-3 एक्सपीरियंस आपके हो गए ना, दैट्स मोर देन इनफ। अब आप प्रॉपर चार्ज करना शुरू करें, प्रॉपर आपकी पोर्टफोलियो बन चुकी है, नाउ यू आर गुड टू गो मूव इन योर करियर। Hello. Can you hear me? So basically, I was trying to question last time, but I don't know my microphone just turned off. So basically, I'm going to question here. So my question was that I want to do creative writing or content writing for specifically short story writing. And in short story writing, I want to write romantic short story writing. But basically, don't you think it's a taboo in Pakistan to write, to be writing like romantic short stories? So how will I get clients in Pakistan? Should I rather not go to Upwork or Fiverr? Because in international level, won't I get more clients for it? You will get more clients for it. I think जैसे मैंने बताया, LinkedIn will be a better option फिर, क्योंकि Facebook पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको इस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, मतलब आप बिगिनर लेवल पे हो बट आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए, तो LinkedIn will be better, LinkedIn पर ज़्यादा। Okay, thank you. एक्सक्यूज मैम, मैम जैसे कि हम रिसर्च वर्क करके आए होते हैं, तो कंटेंट राइटिंग के लिए भी इसी तरह की, जैसे रिसर्च वर्क के लिए 10 रिटन में पता चल जाता है कि हमारा कितना प्लेगरिज्म है, लाइक हमने कितना कॉपीड किया हुआ है, क्योंकि एक जो हमें देता है कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक फैशन और लाइक एनी अदर थिंग, तो उसने माइट भी 3-4 वेबसाइट और भी रीड की हों, जब वो हम सेम एज इट इज लिखेंगे तो माइट भी यहाँ पे कुछ कॉपीड चीजें आएंगी और हमारा कंटेंट जो है वो नहीं एग्री किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में बता सकती हैं कि कोई इस तरह की रूल्स या होती हैं? इसको प्लेजरिज्म कहते हैं, आपको पता ही होगा, अगर आपको इतना डिटेल में माशाल्लाह से पता है तो आपको पता होगा, इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। और प्लेजरिज्म के टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एंड आपका तकरीबन हर क्लाइंट आपका काम प्लेजरिज्म टूल से जरूर चेक करेगा। अच्छा, आपने बात की है कि अगर हर कोई सेम जगह से कॉपी पेस्ट करेगा, तो कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना, दैट्स अ ह्यूज ब्लंडर। मैंने आपको शुरू में क्या बात की थी, रिसर्च करनी है अपने अंदाज से, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एग्जैक्टली, यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू नीड टू फिगर आउट कि जो बात सब कर रहे हैं वो मैंने अपने तरीके से कैसे बतानी है। फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी वाला एग्जांपल दिया था ना? यस मैम, ओके, थैंक यू। एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपके काम में प्लेजरिज्म नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने अंदाज से वो बात लिखी, तो उसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा। प्लेजरिज्म टूल्स जो हैं वो कुछ पेड भी होते हैं, कुछ अनपेड भी होते हैं। उसमें टर्निटिन जो है वो मोस्टली एकेडमिक कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स के लिए कॉपीस्केप, ग्रामरली,
का जो प्लेजरिज्म चेकर है, डुप्ली चेकर, क्यूटेक्स्ट, इस किस्म के वेबसाइट्स जो है वो यूज की जाती है टू चेक द प्लेजरिज्म इन कंटेंट ऑफ वेबसाइट्स। ये ब्लॉग्स एंड आर्टिकल। जी। Any other questions? Dr. Fiza, there was a question from the chat box that can you tell us something about like, starting this content writing on Facebook and Instagram? मैंने सबसे पहले वही डिस्कस किया है। Like how? Okay, right. हाँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आपने क्या करना है, कैसे करना है। प्लीज गाइड अबाउट प्राइसिंग। अच्छा चलिए प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग में बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका एक्सपीरियंस। बिगिनर्स को यूजुअली कम चार्ज करना पड़ता है बिकॉज एक सेकेंड, हाँ जी, बिगिनर्स को यूजुअली अपॉर्चुनिटी जो है वो लो पेइंग इसलिए मिलती है कि जो एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस इज अ ह्यूज थिंग कि जिसकी बेसिस पे आपकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। अब आपने प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है उसकी मैंने एक सबसे बड़ी आपको टिप ये दी है कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी बात होती है। फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, जहाँ पर भी है नेटवर्क जरूर बनाए अपना जब आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो, लेकिन उससे आपको बहुत सारी चीजें, ना सिर्फ आपको रेफरेंस का होता है कि जी रेफरल मिल जाएगा, जॉब आ जाएगी, रिपोर्ट बनेगी, ये वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको आपकी कम्युनिटी ही हेल्प करती है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ प्राइसिंग। अब बहुत सारे लोग ये रेकमेंड करते हैं जी आप गूगल पे जाके देखें या आप अपवर्क पे जाके देखें लोग कितना चार्ज करें। अब सोचने वाली बात यह है कि जो अपवर्क पे चार्ज कर रहा है उसका एक्सपीरियंस या उसकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। जो आप फेसबुक पे क्लाइंट ढूंढ रहे हो उसका बजट डिफरेंट होगा, उसकी लोकेलिटी डिफरेंट होगी। सो द बेस्ट वे इज दिस कि यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल जो आपके लेवल के हैं, जो आपकी लोकेलिटी के हैं, जो आपकी के इर्द गिर्द के हैं, ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सके कि क्या इस वक्त प्राइसिंग चल रही है। ठीक है, सो आस्क अराउंड, डू दैट। उसके अलावा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि अगर आपके पहले कुछ क्लाइंट्स हैं तो आप खुद कभी भी ना बताएं, अगर आपको नहीं पता तो आप थ्रो द बॉल इन देयर कोर्ट एंड टेल देम आप अपना बजट बताएं मुझे, क्योंकि उनका बजट तो डिसाइडेड होता है ना। क्लाइंट्स के पास कुछ बजट होगा तो आपको हायर करना है। दे विल टेल यू अ बजट, देन यू सिट डाउन एंड एनालाइज के इतना पे कर रहे हैं, इतने मेरे घंटे लगेंगे, इतना मेरा काम लगेगा, लगेगा, कुछ सूटेबल लग रहा है वादा है नहीं। अगर सूटेबल लग रहा है वारा खाता है तो यस करें, अगर नहीं तो नाउ यू नो कि ये कम है, उससे ऊपर ही जाओगे अब आप नेक्स्ट टाइम। अगर आपको उस वक्त लग रहा है अभी समझ नहीं आ रही कि ये रेट ठीक है या नहीं, आपने यस कर दिया, ठीक है, आपने यस कर दिया, अब आपको काम कर रहे हो और काम करने के महीने के बाद आपको लगा कि यार ये काम ज्यादा है और पेमेंट कम है, ठीक है, तो क्या हो गया, आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस में आपको ये पता होगा कि ये मेरी लीस्ट पेमेंट है, ये मेरी मिनिमम पेमेंट है, यहाँ से मैंने रेटिंग चार्जेस स्टार्ट करने हैं। ये वो चीजें हैं जो विद एक्सपीरियंस आती हैं। आप हैरान हो गए ये जान के कि विद एक्सपीरियंस आपको पता लगता है कि आपने कितना चार्ज करना है, कितना नहीं। मुझे खुद कितने साल लगे थे यहाँ तक आने में कि मुझे चार्ज कितना करना है, ठीक है। विद एवरी क्लाइंट यू रियलाइज के मुझे जो मैंने पहले चार्ज किया था वो कम था और अब जो मैंने उससे कोटेशन बोली है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है, अब मुझे बीच में कोई ढूंढना है, ये बोली दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट ऑफ के लिए अच्छा है कि कम्युनिटी बनाएं, आस्क अराउंड विद पीपल, वहां से स्टार्ट करें, या जो क्लाइंट ने आपको बजट बताया वहां से स्टार्ट करें एंड देन मूव ऑन फ्रॉम देयर। आई होप दैट आंसर्स योर प्राइसिंग का क्वेश्चन। Amirullah, yes, Amirullah, you can ask. Then my question is that like those who haven't written any content writer, like they are beginners. So what's your suggestion for those who are new or who are the beginner or who haven't seen any content writing? So please tell me. हमारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। Are you hearing me? I can't hear you. आपकी आवाज जो है ना वो बहुत। Hello, excuse me, ma'am. जी बताएं। Like I am saying that those who haven't written any content writer, like they are beginner or they don't know about the content writing, what is it, like they have no writing skills. So what's your suggestion for those people, like for those guys, like I'm asking process in this guys?
इरम आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? मुझे आवाज से नहीं आ रही। आमिर, कैन यू स्पीक? आप उर्दू में बात करें। नहीं, मुझे ना आवाज ही नहीं आ रही। मैम ही सेड दैट, मैम उसने कहा है कि जिन्होंने बिल्कुल कभी राइटिंग नहीं की, पहले कभी नहीं लिखा, तो वो उनके लिए एज अ बिगिनिंग लेवल पे से शुरू किया जा सकता है। क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं? अच्छा, यस। जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती हूँ ना, उसके अंदर मेरा बेस्ट तरीका ये होता है कि उनको पहले लिखने की आदत डाली जाए। उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, मैं सिर्फ उनको एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देके और मैं उनसे कहती हूँ कि आप 300-400 वर्ड्स ना मुझे लिख के सबमिट कराएं कि अपने बारे में थोड़ा सा लिख दें। उससे ये होता है कि क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं लिखा, तो उनसे एकदम से ना ब्लॉग्स नहीं लिखे जाते, उनको नहीं समझ आता, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लिखने की हैबिट नहीं होती। तो ये जो पहला छोटा सा टास्क होता है ना, उससे वो थोड़ा राइटिंग के हैबिट में आते हैं। तो ये हम करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, ठीक है। व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू आल्सो इज कि अगर आपने पहले कभी नहीं लिखा और आप डर रहे हो कि ब्लॉग्स कैसे लिखूं या आर्टिकल्स कैसे लिखूं, थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल हो गया है वो, तो उसमें बेहतरीन काम यही है कि आप छोटा मोटा लिखने से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉलेज का दिन कैसा गुजरा, जस्ट राइट लाइक 200-300 वर्ड्स। एक हफ्ता करें, 2-4 दफा लिखेंगे, एक हफ्ते में आपको थोड़ी बहुत झिझक जो है वो खत्म हो जाती है। एंड देन यू स्टार्ट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जाएं गूगल पर या ChatGPT पर, वहां पर लिखें कि गिव मी 5 आइडियाज फॉर ब्लॉग इन फलाना कैटेगरी, और वो आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकाल कर दे देगा। किसी पर भी लिखना शुरू कर दें। ये लिखने की हैबिट जाहिर है ये बनानी पड़ती है। जिन्होंने कभी नहीं लिखा लेकिन उनको अभी इंटरेस्ट पैदा हुआ है, वो लिखना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा इशू होता है शुरू में, लेकिन द बेस्ट थिंग इज दिस कि किसी भी बहाने बस लिखना शुरू कर दें एंड देन मूव फ्रॉम देयर, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Salam, there are a few students who are asking to join you. They're asking, मैं आपको join करना चाहती हूँ. How can we do this? How can you join me? आप फ्रीलांसिंग बाय फे इंस्टाग्राम पे चेकआउट करें, वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। अभी जैसे मैंने बताया, हमने थोड़ा पॉज किया हुआ है बिकॉज हम कुछ रिवैम्पिंग कर रहे हैं, कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी हमने थोड़ा सा डिले किया हुआ है, लेकिन वी आर अवेलेबल ओवर देयर, मी एंड माई टीम। आपने हमें ज्वाइन करना है, आपने कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बात करनी है, सवाल करनी है, कुछ भी है, इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। फ्रीलांसिंग बाय फे ऑन इंस्टाग्राम। Ma'am, there's a question in the chat box. Fiverr पे गिग के बारे में बता दें, कैसे वहाँ शुरू करें एज ए डिजिटल। फाइवर पे गिग के बारे में बता दें। फाइवर और अपवर्क पे जो लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, और वो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी बिकॉज मैं अपने आप को मैं ऐसे आपसे मैं बोलूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। मैंने आपको बताया मैं कभी अपवर्क पे मैंने काम नहीं किया, कभी मैं फाइवर पे नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो दैट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेटर फॉर समबडी जिसको अपवर्क का खास तौर पे एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का, और जिनको फाइवर का एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का। मैं आई एम इन द वर्क्स ऑफ एडिंग दीज पीपल टू माई टीम, क्योंकि मेरे पास इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है अपवर्क फाइवर पे जाने का, सो आई वोंट बी द अथॉरिटी टू टेल people, guide people about this. So the best solution I had was I'm going to hire people who are experts in that field so that they can help my followers, my students and everybody. तो उसके लिए तो different seminar करना पड़ेगा। Okay, can I add something at this point? There will be again by English Alumni Society physically on 16th of November in Namal, obviously. And Sir Hisham Sarwar will be invited, और उनको फाइवर और ये इनके बारे में जो अभी अपवर्क है उसके बारे में बहुत पता है, and he will be actually guiding everyone physically and personally in Namal on 16th November. That's brilliant. He's very knowledgeable in the field, so that will be able to help you guys even more in Fiverr and Upwork wala matter. Ma'am, there is another question, Maaz Khan. Yes, actually my question is, as you talked about the key principles of content writing, they are clarity, relevance, engaging. So can you please elaborate them again, like there should be a customer needs or innovation there? Thank you. इनकी डिटेल में जानना चाहें तो डिटेल तो बहुत ज़्यादा है।
जैसा मैंने बताया, इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि इसकी डिटेल भी है। इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो बहुत एक्सप्लेनेशन में हम जा सकते हैं। पूरा प्रॉपर 50-60 मिनट्स का लेक्चर एक चीज़ पे हो सकता है। एक क्लैरिटी, रेलेवेंस, एंगेजमेंट, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया था, मजीद एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ इफ यू वांट। थोड़ा सा अपना क्वेश्चन रिपीट करें कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट यू वुड लाइक टू नो अबाउट दिस। Ma'am, I wanted to know about the innovations that we can talk about. The innovations are the customer needs and these things, like it should be in clarity or relevance and engagement. रेलेवेंस में आएगा, एंगेजमेंट में भी आ सकता है, रेलेवेंस में आएगा बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो आप आर्टिकल लिख रहे हो या जो ब्लॉग लिख रहे हो, आप जिस टारगेट ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, आप उनसे रेलेवेंट लिखोगे, उनका मसला माइंड में रखते हुए, ठीक है। आप जो भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमने लिखा था फ्रेंच फ्राई रेसिपी वाला जो ब्लॉग आर्टिकल, उसी को हम अगर एज एन एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर अगर हम ये माइंड में रखें कि जो रीडर है ये मेरे ब्लॉग पे क्यों आया है, ठीक है, ब्लॉग पे क्यों आया है, ये सिर्फ फ्रेंच फ्राई की रेसिपी लेने आया है या इसको खास मसला है इसके लिए ही आया। तो अब आप क्या करेंगे, आप आर्टिकल यूं करके डिजाइन करेंगे कि आपने फ्रेंच फ्राई की रेसिपी तो बता दी, वो सबको पता है, ठीक है, एंड उसके नीचे आपने उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी देनी है कि अगर आपके पोटैटो सॉगी हो रहे हैं या पुराने हो रहे हैं, कितने टाइम तक चल सकते हैं, क्रिस्पी कैसे करें, फलाना बैटर बना लें, कौन से इनके साथ सॉसेज अच्छी चल सकती हैं, स्टफ लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें रेलिवेंस में आती हैं। कस्टमर का या जो क्लाइंट है या जो रीडर है, उसका माइंडसेट समझें वो क्यों आया है, और उसके माइंडसेट से रेलिवेंट चीज़ें आपने अपने ब्लॉग और आर्टिकल के अंदर डालनी है। यही आपकी इनोवेशन भी होगी कि गेट इनटू द माइंड ऑफ द रीडर, कि उसको वो क्या ढूंढने आया है इस आर्टिकल के अंदर, एंड देन यू क्रिएट एंड यू डिजाइन योर होल लेआउट अकॉर्डिंग टू दैट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन अ लिटिल बिट। Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Fiza, for a wonderful session. It was very informative and very knowledgeable. Thank you so much. You're welcome. Thank you for joining us. Yes, ma'am. You were saying? Yes, so I was just thanking her for joining us. It was a very informative session and it was very knowledgeable. Yes, ma'am. Thank you so much for your time. You're welcome. It was truly a pleasure. It was a really good experience on my side as well. MashaAllah, everybody is really active and सवाल जो आए हैं वो मतलब अच्छे सवाल हैं। I wasn't expecting कि सब इतना जाग रहे होंगे। Actually, there has been like most of the BS English students, they are actually working on content writing. Most of the youngsters, they are working. खुद से भी आते हैं, हम लोगों ने खुद भी हमारे जो सोसाइटीज़ हैं इसमें भी कंटेंट राइटिंग की एक पूरी एक टीम है. So basically they want to learn more about content writing. That's great. माशाल्लाह, I am always available at, जैसे मैंने बताया, freelancing by Faye पे, Instagram पे, me and my team is always available for you guys. किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी मसला है, the DMs are open. थोड़ा टाइम लग जाएगा जवाब देने में, लेकिन जवाब जरूर आएगा इंशाल्लाह. And hopefully we'll see you in Namal as well. Hopefully this semester. Why not? Inshallah. Okay. Thank you so much. Thank you everyone for joining. The recording will be sent. The recording will be sent. Will be uploaded on YouTube and Instagram and Facebook after editing, obviously.